warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. بہرحال آز کہ درس خاطر یمن آیاتن ہند میں انتخاب کور یم چھ جنگ احدس پیٹھ یس زن تبصر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کورمت اس کڑی کی یہ آخری آیات ہیں. یعنی یمن آیاتن پیٹھ جنگ احدک یس زن واقع یا یم زن تات مز مسائل یا یم زن تات متعلق تبصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورمت ان آیات پر اس کا اتمام ہوتا ہے. اور انشاءاللہ المستعان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگانی تھو بٹوار دو یہ زن درس سہ سورہ آل عمران کی زن آخری رکوش اور تات واریاہ زیادہ فضیلت تہ احادیثن مز آمز. انشاءاللہ المستعان اس کو ہم پھر آخر میں یعنی سنیچر کے دن شروع کریں گے. آزک آیات یم زن چھ بہرحال یہ سوئی رات کوئی مضمون جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر آپ جنت کا حصول چاہتے ہو تو آپ کو آزمائشوں کے لیے اور تکالیف کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور یہ کڑوی کثیری باتیں جو آپ کو اہل کتاب یا مشرکین سنائیں گے اس پر آپ کو صبر کرنا ہوگا, تقوی اختیار کرنا ہوگا. تب جا کر آپ کس کے قابل ہو جاؤ گے؟ جنت کے قابل ہو جاؤ گے. آت میں سانی خاطر تہ تربیت کہ جنت کا حصول یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا. آزک آیات یم ترے آئے مبارکہ. پہلی آیت جو ہے اس میں اہلی کتاب سے خطاب ہے تکیاز میں ونتا یم سات نے سورہ آل عمران شروع کریو زیادہ پہن خطاب ات مز کمن ست نصارہن اہلی کتابوں مز تہ نصارہن ست. تو یہاں پر بھی انہی سے خطاب ہے. اور دویم آیت زن ام آز کے درس اس میں یم زن منافق ان سے خطاب ہے. مانتو تہ رات آیت سو مومنن خطاب. آز کی زن درس گۄڈنِچ آیت یہ اہلی کتابن خطاب اور اس کی دوسری آیت جو ہے وہ منافقین سے خطاب ہے. اور آخری آیت جو اس جنگ احد پر تبصرے کا تکملہ ہے وہ سبھی گروہوں سے مسلمانوں سے بھی کفار سے بھی اور اہلی کتاب سے بھی خطاب ہے. بہرحال اہلی کتابن کیا خطاب چھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلی کتاب سے وعدہ لیا تھا یا میثاق لیا تھا. میثاق کا چھ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ کو جس میں فریقین یم زن جو ایک دوسرے پر قسم اٹھائیں. پختہ وعدہ جو ہے اس کو میثاق کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یاد کرو وقت جب ہم نے اہلی کتاب سے پختہ عہد لیا تھا. کس بات کا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے, واضح کر کے بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں. اما کس بات کو آپ کھول کر بیان کرو گے؟ یعنی جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے. اہل کتاب کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ تورات اور انجیل. یعنی یہ کیسا توراتس مز یہ کیسا انجیلس مز تہندِ خاطر نازل گومت اس کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان, کوئی بات آپ چھپاؤ گے نہیں. بہرحال پات کن پڑھے سورہ بقرہ مز تھے اور سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ یہ تورات اور انجیل میں تحریف کرتے تھے.
कभी उनके अल्फाज में भी तहरीफ करते थे और कभी उनके तफसीर में या माना में भी तहरीफ करते थे। बिलखसूस यम पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलिक आस, यम बशारत यम खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद मुतलिक आस, उनको तो ये सिरे से ही क्या करते थे, गड़बड़ करते थे और छुपा देते थे। तो उसी बात की तरफ यहाँ इशारा है, ए अहली किताब याद करो कि हमने आपसे अहद लिया था कि जो कुछ तौरात में और इंजील में हक बात आई है, बिलखसूस इस नबी के बारे में आपसे अहद दिया गया था कि आप लोगों के सामने उसको वाज़ा करके और खोल खोल कर बयान करोगे। बहरहाल पिछले ये सूरत में भी और इस सूरत में भी हमने पढ़ा कि ये उमर मुतलिक ये लुक प्रसन्न मन, ये जो उम्मी लोग थे या यम जन बाकी आम यम जन लुक अहली किताबों मज थे, यम सातन उमन प्रसन्न यहन पन्न उलमाहन प्रसन्न, क्या यह सुई नबी, क्या ये वही नबी है जिसकी बशारत तौरात में है। यम क्या तम साथ में यम ना ये वो नबी नहीं है बल्कि वो आने वाला है और वो हम में आएगा। बहरहाल ये उस बशारत को, उन खुशखबरियों को छुपाते थे। इसी की तरफ यहाँ पर इशारा है कि याद करो अहली किताब, जो अहद हमने लिया था आपसे कि आप जो कुछ तौरात और इंजील में वाज़िया निशानियां हैं इस नबी की या वाज़िया तालीमात हैं उनको नहीं छुपाओगे। तो अल्लाह ताला फरमाता वला तक्तुमून, और आप उनको नहीं छुपाओगे। फनबदूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो आपने क्या किया, आपने इन सब हमारे अहद व पैमान को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, यानी तोहि थोउल अमिक पासो लिहाज किन। अल्लाह ताला फरमाता वश्तरो बिही थमनन कलीला, और बदबख्तो आपने इसके बदले क्या काम किया, आपने दुनिया के हकीर मफादात और दुनिया की हकीर लालच के खातिर इन आयात को या इन बशारतों को और इस हक को छुपा दिया। अल्लाह ताला फरमान फबिअसा मा यश्तरून, कितना ही बुरा है जो आपने इसके बदले मोल लिया, यानी कोता घाटुक सौदा कोरवत है कि हक को छुपाने के बदले आपने दुनिया के इन हकीर मफादात को और हकीर कीमत को मोल लिया। बहरहाल रवायतन में आमुत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरुष अक सातन यमन अहली किताबन हिनन उलमाहन कि आपकी किताबों में आखिरी नबी के बारे में क्या बशारतें हैं, यानी पानस मुतलिक पुरुषों की इसके बारे में आपकी किताब क्या कहती है। और मुसलमान थे और सहाब सब थे कुछ साथ निमन प्रसन्न कि आप बताइए कि आखिरी नबी के बारे में आपकी किताबों में क्या क्या बशारतें आई हैं। तो इन्होंने बिल्कुल गड़बड़ करके और इन्होंने बिल्कुल तहरीफ करके बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलिक नसा छन यम बशारत साहब सब, और हत्ता कि इनकी बदबख्ती इतनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने ये रसूलुल्लाह इस्तिफसार कर उनसे भी उन्होंने हक को छुपाया और समझन कि अच्छा सब डोल अल्लाह ताला बचे, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक क्या दिया, धोखा दिया। तो अल्लाह ताला फरमान फबिअसा मा यश्तरून, कितना बुरा सौदा और कितना घाटे का सौदा इन लोगों ने किया। बहरहाल ये तो असल में आयत किन के बारे में नाजिल हुई है, अहली किताब के उलमा के बारे में जो हक को छुपाते थे, मगर ज़िमनन च आत्मस जीवन, क्योंकि कुरान तो कयामत तक के लिए हिदायत की किताब है, इसमें आज के वो उलमाए सू भी आते हैं जो हकीर मफादात के खातिर, पैसों के खातिर, दुनिया की लालच के खातिर मसले को टेम्पर करन या तोड़ फोड़ करन। मिसाल के तौर पर कोई आदमी जाता है किसी आलिम के पास और उससे मसला पूछता है, अब अगर वो उसको अगर से तमिस क्या हदी दिवन या नजरान दिवन, आज हमने देखा कि उलमा आज नजरानों के खातिर और हकीर मफादात के खातिर मसले को ही, उसकी नवियत को ही बदल देते हैं। बहरहाल आज के वो उलमाए सू भी इस जुमरे में दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला फरमान ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ्रहून। अब ये आयत जो है ये मुनाफिकीन के बारे में है, ये शिकमन मतलब मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन का क्या वतीरा था, मुनाफिकीन हिंद वतीरो ये कि यम जबानी जमा खर्च कर जबरदस्त मुसलमानन ब्रोट कन कि ये पर आज ते आम वन असे तही से तुहसी मिशन साथ दिवन, मगर जब आजमाइश का वक्त आता था या जब जहाज के लिए जाने का मौका आता था यम तम सात कतरावन और मुख्तलिफ बहाने करते थे, या रसूलुल्लाह वह में फलानी मजबूरी, वह में ये क्या वन ये जरूरत घरस में, अब ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। इस तरह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इनकी निफाक को जानते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बाखबर भी किया था इनके निफाक के बारे में, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मामला सनन के वो उनको इजाजत देते थे कि जाओ बैठ जाओ, कहां पर, घर में ही। तो बहरहाल यह खुश गसन कि वुश्ता अस तोग ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायल कर पन्नी मकरी से, पन्नी चालाकी से, तो इस वजह से हम उनको कायल करने में और उनको नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक धोखा देने में हम कामयाब हो गए। तो इस पर यह आयत नाजिल हो गई ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ्रहून, वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश होते हैं, यानी तुम लोग हिमजन पन्निस तगन गरी पर क्या गसन छ, खुश गसन छ, बिमा आतौ,
बिमा आतो यानी जो कुछ उन्होंने अपनी चालाकी की वजह से, ये जबानी जमा खर्च की वजह से जो ये अपने आप को कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को धोखा देना आ गया, आप पे खुश गसन व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, हाँ, और ये चाहते हैं कि उस बात पर भी हमारी तारीफ की जाए जो काम उन्होंने किया ही नहीं। यानी ये साथ पत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस जहाद पे पत लागन हत या रसूल अगर हज बह करहा यह, अगर हज बह करहा यह पे आज ती आम मुनाफिकन, यानी गोड़ हेवन उजुर मुख्तलिफ बहान मुख्तलिफ हील कर कि या रसूल यह मजबूरी छम हम मजबूरी छम यह छम ना प्रॉब्लम। बहरहाल तो उस वक्त ये हीले बहाने करते थे और अपने आप को बचाते थे। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान कि ला तहसबन्न लजीना यफरहू, हाँ, वो लोग जो अपने करतूतों की अपनी चुर्ब जबानी की वजह से जो अपने आप पर खुश होते हैं और फिर वापस आकर मुसलमानों से कहते हैं अगर बत आसा या जहादस में अगर बत आसा में वुझे बह क्या कारनामा करहा, ये करता वो करता, तो उन बातों पर भी ये दाद हासिल करना चाहते हैं, उस काम पर भी ये दाद हासिल करना चाहते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं, कोर्मुत बुनियादी आसन अत पे व्यसन कि गई शाबाशी कर। अल्लाह ताला फरमान फला तहसबन्न बिमहफाजत मिनल अज़ाब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुतमईन रहिए और आप बिल्कुल आराम से चैन रहिए कि तह गो दिल मुबारक आप रंज के, बल्कि फला तहसबन्न बिमहफाजत मिनल अज़ाब, आप मुतमईन रहिए कि इनकी ये चरब जबानी, इनकी ये चालाकी, ये इनको अजाब से नहीं बचा सकती है। यह एक नीमन अजाब नहीं बचाए, यानी ये धमकी किनको दी गई है और ये बाखबर किनको किया गया है, इन मुनाफिकीन को जो अपनी चरब जबानी की वजह से अपनी चालाकी की वजह से समझते थे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह मिन धोखा दिया है और सहाबा को धोखा दिया है। अच्छा, दूसरी बात, अब आ गया ये चार जबानी चला कर तावील हील बहान कर, अब उल्टा इतने बदबख्त थे ये जब सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुहिम से वापस आते थे, पता लागन झूठ मूठ की डेंगे मारते थे कि अताज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आसाव करा ये लुड़पार कुफारन ये करा वो करा, तो अल्लाह ताला फरमान ये उस बात का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं जो बात या जो अमल इन्होंने की नहीं है। अल्लाह ताला फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को भी मुतमईन किया जाता है कि आप मुतमईन रहिए, इनकी ये चरब जबानी, इनकी ये चालाकियां, ये इनको अजाब अलीम से बचा नहीं सकती हैं। बहरहाल अत में सानि खतर तरबियत अहम मामला सह गो ये कि एक तो अपने इंसान यह गि अमल बोस्ट कर, यानी पन अमलन पे गि पत व्यसन दुनिया मज वसूल कर वाह वाह कह कमा कर अल्लाह ताला से रजा खतर, बस पत रोज टाव टाव कर मे कोर ना यह पत अगर न बह करहा यह अगर न यह कोर्मुत यह कोरम बुश ना दरस दिवन, बुश ना लुकन पढ़नावन, बुश ना लुकन दावत दिवन दिन। अब ये अपनी इस बातों को अपने अमल को मान तो छालन, तो इसकी भी ममानियत इस आयत में साबित होती है कि मुसलमान कि यह पन्ने अमल पन्ने काम यह बिल्कुल यह अमुक सिला व्यसन कमन निश हासिल कर लुकन। दयम यह कत अत मज समझान आम सह कि युस अमल न इंसान करी सह गि पत लुकन ब्रोट कन जाहिर कर तिथ कि बह यह कर। मिसाल के तौर पर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता ही नहीं है, कह शख्स तहज्जुद पढ़न मगर बासन गुमान लुकन बहनावन यथ पे जन बासन कि यह रात कर क्या शब बेदारी, इन्फाक करता ही नहीं है, खुदा वत माल खर्च कर मगर लुकन हावन या लुकन कुछ साथ वन मे कोर फलान जगह यूता खर्च मे तो कोर तमिस मदद आम तौर पर वन। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा और ये अमल इंतहाई नापसंद है कि कोई काम आपने किया ही नहीं मगर आप उसका क्रेडिट लेते हैं। अल्लाह ताला फरमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा आप मुतमईन रहिए, इनकी ये चालाकियां ये लोगों को धोखा दे सकते हैं मगर अल्लाह तबारक व तआला के हाँ इनकी चालाकियां और इनकी ये चरब जबानी इनको अजाब अलीम से बचा नहीं सकती हैं। अल्लाह ताला रिपीट करन वलहुम अजाबुन अलीम, हाँ आप याद रखिए इनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार करके रखा है। अम पे अल्लाह तबारक व तआला ये दरस आखिरी आयत इसमें तीनों ग्रोहों से खिताब है, यानी मुसलमानों से भी, अहली किताब से भी और मुशरिकीन मक्का से या मुशरिकन काफिर तमन थे। क्या कहा जाता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, याद रखो मुसलमानों आप भी याद रखो, अहली किताब आप भी याद रखो और मुनाफिकों और काफिरों आप भी याद रखो वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ अल्लाह ताला के लिए ही जमीनों आसमानों की बादशाहत है, यानी तमाम जमीनों आसमान में बादशाहत कम से दस्ता कुदरत में अल्लाह। अब अगर कोई अच्छा अमल करता है वो अपने लिए कर रहा है, उससे उसकी बादशाही में कोई इजाफा नहीं। कोई धोखा देता है अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक
या वो समझता है कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को धोखा दिया, तो अल्लाह बादशाह तो असल में उसके पास है, वो सब कुछ देखता है और बादशाह इस बात की वो पूरा इख्तियार रखता है कि वो इनको पकड़ सकता है। और अहली किताबन आवन युस तो ये दोख दिवन, युस तो ये हक छुपावन छू, अरे ये तो आप दुनिया के लोगों के साथ छुपा सकते हो अपने आमाल, मगर बादशाह जो इस जमीन और आसमान का है वो आपके आमाल को पूरी तरह से देख रहा है। गर्ज त्रेशवनी ग्रोहन जीवन मन कि तुहज अमल युमजन वो अल्लाह की नजरों के सामने हैं और हर किसी को अपने अमलों के हिसाब से वहां पर सिला मिलेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, हाँ अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। क्या मतलब है इसका कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? अल्लाह इस चीज़ पर कुदरत रखता है कि मुसलमानों को बेहतरीन सिला भी अता करेगा, और अल्लाह इस बात पर भी कुदरत रखता है कि आज वक्ती तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई है, कल इनको वो क्या दे सकता है? गलबा भी अता कर सकता है। और अल्लाह इस बात पर भी कुदरत रखता है कि आप लोगों को, अहली किताब और मुनाफिकीन मुसलमानों को और रसूल को धोखा देते हैं, अल्लाह इस बात की भी कुदरत रखता है कि वो आपको पकड़ सकता है और आपको दुनिया में ही सजा दे सकता है। मगर ये अल्लाह का कानून है कि उसने आप पर इसकी यज़न रस्सी जो है उसको दराज किया हुआ है, और इसका मौका वो बहरहाल कयामत के दिन इसका मौका आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला आपके अमलों का बाज़ाब्ता हिसाब देगा और वहां आपकी पकड़ होगी। बहरहाल यहाँ पर इस जंग अहद पर जो तबसरा है वो मुकम्मल होता है। यम तालीमात, यम तरबियत नक्त तम अक अल्लाह तबारक व तआला बयान कर। हासिल कलाम अमुक ये कि जंग अहद में जो वक्ती तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई, बहरहाल ये शिकस्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस वजह से नहीं दी कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुसलमानों को नापसंद करता है, नहीं, बल्कि ये शिकस्त आई उमर एम सब दिन क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिखाना चाहता था मुसलमानों को कि रसूल की जो नाफरमानी होती है ये कोई मामूली बात नहीं है, इसकी सजा आपको मिलेगी जरूर। और वक्ती तौर पर दित अल्लाह तबारक व तआला ने हयत कि यस रसूल से नाफरमानी करो, इसकी सजा ये है कि वक्ती तौर पर आप मगलूब हो गए। दयम कथ अमुक ये पोड़ कि वक्ती तौर पर जो जंग अहद में मुसलमानों को ये पसपाई या शिकस्त हुई, इसका एक मकसद यह भी था कि अल्लाह तबारक व तआला छांटना चाहता था कि मुसलमान मुखलिस कौन है और मुनाफिक युमजन वो कौन है, और यह अलग अलग करके अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सामने वाज़ा कर दिया कि मुखलिस कौन है और मुनाफिक कौन है। और त्रेयम बोड़ चीज अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता था कि इस शिकस्त के बावजूद भी कौन अल्लाह पर तवक्कल करता है, कौन अल्लाह पर भरोसा किए हुए है, और कुछ पन्निस ईमान पख्त सुप युजन अल्लाह ताला से ईमान था। ये असल में कुछ नुकात मोट मोट यम जन जंग अहद से हमें हासिल होते हैं तरबियत के लिहाज से। अल्लाह तबारक व तआला मगो दुआ कि यम तरबियत नुकात और यम अत सब असबाक सान खतर अल्लाह तबारक व तआला दीन तिमन पर अमल करने तौफीक, और अल्लाह तबारक व तआला दीन रसूल से सही माना इताअत करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।